Hello, how are you? In the last few lectures, we have studied about the binomial theorem for positive integral index. Today, we will study binomial theorem for any index. Index may be rational, index may be नेगेटिव और ये स्पेशल हम लोगों का जेई मेन के लिए पढ़ना जरूरी है। पीछे के लेक्चर से आप बाइनोमियल थ्योरम समाप्त कर लिए होंगे। हम इस चैप्टर में आगे 3 क्विज करेंगे और दो मेगा क्विज होगा जो अवश्य पढ़िएगा। 3 क्विज में हर एक क्विज में 10 से 15 क्वेश्चंस होगा, एक से एक ट्रिक होगा, एकदम मेगा ट्रिक पढ़ेंगे आप और क्वेश्चन को जल्दी हल करेंगे। तो चले हम लोग शुरू करें। इफ n belongs to any rational number and mod x is less than 1, then 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square। जितना फैक्टोरियल नीचे में डाल रहे हैं वेरिएबल x का पावर उतना ही डालते चले जाएंगे और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होते जाएगा n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3 into x square plus dot dot plus n into n minus 1 into n minus 2 into dot dot rth term n minus r plus 1th term by factorial r into x to the power r plus dot dot। Look at here, the term, if we put r equals to 1, so this will be n minus 1 plus 1, cancel out and this is n x. And r equals to 2, so this is n minus 1, so n into n minus 1 by factorial 2 into x to the power 2 here. So therefore, we observe that the general term, that is r plus 1th term, is such that, so therefore tr plus 1 equals to n into n minus 1 into n minus 2 into dot dot n minus r plus 1 by factorial r into x to the power r. This is the general term in the expansion of 1 plus x to the power n, where n is rational and mod x must be less than 1. Similarly, we can find the important deductions. Number 8. We replace here x by minus x. So 1 minus x to the power n equals to, put x equals to minus x in each term, we get 1 minus nx plus n into n minus 1 into x square by factorial 2 plus, the values will be minus x. We can write the term that is here x cube. So minus n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3 into x cube plus dot dot and the last n into n minus 2 n minus 2 into n minus r plus 1 by factorial r into minus x to the power r
plus dot dot. Look at here. This is the multiplication of minus x to the power r. We can write here, this can take minus 1 in common, and this is x to the power r. So here, tr plus 1, the general term is minus 1 to the power r, n into n minus 1 into n minus 2 into dot dot n minus r plus 1 divided by factorial r into x to the power r. Remember it. Always remember it. So, look at again. हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर n निकाल चुके हैं। ये आया कहाँ से? पिछले क्लासेस में बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन पढ़े थे, उसी को एक्सपेंड कर देंगे nc1n, इस तरह से nc2n into n minus 1 by factorial 2। तो इस तरह से एक्सपेंड करके आया है, और इसमें x के जगह माइनस x रख दिए। सो 1 माइनस nx प्लस x के जगह माइनस x रखने से 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस x टू दी पावर 2 माइनस x टू दी पावर 2 माइनस x का होल स्क्वायर, दैट इज प्लस हो गया, और माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस x का होल क्यूब माइनस x क्यूब। सो माइनस वी कैन राइट हियर, and n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3 into x cube plus dot dot, and the last x के जगह सिर्फ माइनस x रखे हैं, उसी को हम लोग माइनस 1 का पावर r इंटू एक्स का पावर r लिखे, बाकी सारा टर्म लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये दूसरा टर्म था। इस डिडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ द डिडक्शन टू 1 प्लस x टू दी पावर माइनस है। अभी इससे पहले 1 में देखिए 1 माइनस x टू दी पावर n था। अब हम लोग लिखते हैं n के जगह माइनस है, सो 1 माइनस nx प्लस, यहाँ आसानी से वैल्यू रख सकते हैं, तो n के जगह माइनस है, माइनस n माइनस 1, माइनस इज टेकन इन कॉमन, सो माइनस माइनस प्लस n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n into n minus 1 plus 1 into n plus 2, n के जगह माइनस n रखेंगे, कॉमन लेंगे तो माइनस 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 गुना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट लास्ट n into n minus 1 प्लस बन जाएगा n plus 2 डॉट डॉट n plus r minus 1 by factorial r into x to the power r plus dot dot। फिर यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर इस जगह हम लोग माइनस 1 का पावर r लिख देंगे। तो यहाँ से भी हम लोग के पास जनरल टर्म क्या आया, माइनस 1 का पावर r इंटू n इंटू n माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 into dot dot n plus r minus 1 by factorial r into x to the power r. Here is factorial r. So ये टर्म पुनः जनरल टर्म हम लोग इस एक्सपेंशन में निकाल लेंगे। Now the third deduction is 1 minus x to the power minus n, 1 minus third to the power minus n। This is very important, इसे तो एकदम याद रखेंगे आप। अब x के जगह भी माइनस x, n के जगह भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
into x cube by factorial 3 plus dot dot plus लास्ट जनरल टर्म उसी की तरह जैसे हम लोग पहले से लिखते आ रहे। सो दिस इज n into n plus 1 into n plus 2 into dot dot n plus r minus 1 divided by factorial r into x to the power r plus dot dot। x के जगह भी माइनस एक्स रखें और n के जगह -1 रखें। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ कॉमन हो गया है -1 का पावर r और यहाँ भी -1 का पावर r से कॉमन हो गया, -1 का पावर 2r हो जाएगा और that will be 1। So here it is tr plus 1 equals to n into n plus 1 into n plus 2 into dot dot n plus r minus 1 by factorial r into x to the power r। This is very important term। तो ये 3 डिडक्शंस पढ़े और एक जनरल फार्मूला जो बोर्ड पर पहले से मैं लिख चुका हूं। तो ये चारों फार्मूला बृहद रूप से कंप्लीटली याद रखना चाहिए। इस कंसेप्ट को और भी लिख सकते हैं आप। So we can write in the general representation, इस एक्सपेंशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 plus nx nc1 n होगा, n plus 1 c2 को हल करेंगे तो ये आएगा n plus 1 into n into फैक्टोरियल। इस तरह से ब्रेक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा। आप देखिए यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन 1 minus x to the power minus n क्या आया है n plus r minus 1 cr। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ncr इक्वल्स टू ncn minus r वाला फार्मूला लगा करके हेड c टेन इक्वल्स टू हेड c हेड माइनस टेन याद होगा आपको। सो n plus r minus 1 c n minus 1 हो जाएगा। तो ये मुख्य फार्मूला कंप्लीटली आप इसे याद रखेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर जो आपको मजा आएगा। So the question is find the coefficient of x to the power 10 in the expansion of 1 plus 3x square by 1 minus x square का पावर 3। हम लोग इसको बारीकी से देखें। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो इस सवाल को बनाने में दिक्कत होगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन, इसे लिख सकते हैं 1 plus 3x square into 1 minus x square to the power minus 3। एक टेक्निकल बात है, आप यहाँ x स्क्वायर को t एज्यूम कर लें, सही है। तो क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर यानी t का पावर 5 हो जाएगा, x स्क्वायर का पावर 5 लिखें, t का पावर 5 इन 1 plus 3t into 1 minus t to the power minus 3। x स्क्वायर रिड्यूस होकर के t 3x स्क्वायर है 3t एंड दैट्स इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ t to the power 5 इन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 minus t to the power minus 3 plus 3 into इससे गुणा कर देंगे। और आपको बताए हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर रिड्यूस होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ t का पावर 5 minus 1, there is index 1, so 5 minus 1 that is 4, t to the power 4 in 1 minus t to the power minus 3। अब आपको यहाँ देखिए फार्मूला, आप इसे लिखेंगे n is 3, r is 5, so 5 plus 3 minus 1 c r is 5
प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 4 r is 4. Look at this formula. एंड इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 माइनस 1 7 c5 प्लस 3 इंटू 4 3 7 में से एक गया 6 c4. We can reduce it 7 c2 plus 3 into 6 c2. This will be 7 into 6 by 1 into 2 plus 3 into 6 into 5 by 1 into 2. That is 3. So 21 plus this is 3 and that is 45 and that will be 66. This is your answer. So this is very important to remember. Actually such type of questions is very easy with the help of this formula, coefficient of x to the power r in 1 minus x to the power minus n, that is n plus r minus 1 cr. So copy कर लें. Next question is find the coefficient of x to the power 6 in 1 minus 2x to the power minus 5 by 2. तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे 1 minus x to the power minus n का expansion, that is r plus 1 term in the expansion of 1 minus x to the power minus n, that is equals to tr plus 1, and this will be n into n plus 1 into n plus 2 into n plus r minus 1 by factorial r into x to the power r. Here is, we can write x equals to 2x, n equals to 5 by 2. So the tr plus 1 equals to 5 by 2, n is 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2 plus 1, 5 by 2 plus 2, dot dot 5 by 2 plus r minus 1 by factorial r into, in the place of x, we have seen that here minus 2x for minus x, so x equals to 2x, 2x हम लोग यहाँ रख देंगे, इसका पावर r हो गया. अब कोफिशिएंट r का पावर 6 के लिए कोफिशिएंट हो जाएगा 5 by 2, 5 by 2 plus 1, 5 by 2 plus 2, dot dot 5 by 2 plus r की जगह 6, 6 minus 1 to the power 6 into x to the power 6, and this is the coefficient of x to the power 6. इसको हल कर देंगे हम लोग 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2, 6 तक बढ़ते चले और ऊपर में 11 बटा 2, 13 बटा 2, 6 रखेंगे 5 15 बटा 2 by factorial 6 into 2 to the power 6, 2 to the power 6 6 times denominator से कट जाएगा 2 का पावर, and this will be, and solve we will get this is. तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें याद रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोफिशिएंट निकालने में इस तरह के क्वेश्चंस का दिक्कत होगा. और ये हम लोगों को जेईई मेन में पूछता है. जेईई मेन में दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ क्लास 11. ये हम लोगों को जेईई मेन में पूछेगा, तो इस तरह से बनाएंगे. कॉपी कर ले आप. कुछ इंपॉर्टेंट उसी का एक्सपेंशंस, जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन, 1 माइनस एन एक्स प्लस करके लिखे थे, ठीक उसी तरह 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 डालेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस होते जाएगा अप टू इंफिनिटी. 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस तरह से इंफिनिटी तक होते जाएगा. इसी में हम लोग अगर माइनस रख दें 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 प्लस डॉट डॉट फिर इंफिनिटी. नंबर 4
1 माइनस एक्स टू दी पावर -2 कर दें तो पुनः 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी हो जाएगा। आप बहुत लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का पावर -3, 1 माइनस एक्स का पावर -4, -5, यानी कम से कम 3-4 इंडेक्स तक याद रहना चाहिए। इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम के सारे प्रोफाइल को हम लोगों ने डिस्कस किया है और आप इसे किसी भी टेक्स्ट बुक से, ऐसे मैं बोल दिया हूँ कि क्लास में मैं दिखाया भी था कि कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा आलोक भारती पब्लिकेशन से आती है, बेहद सुंदर किताब है और आप उसके एक एक सवाल को बनाएं, आप हमारे कमेंट में लिखें और कहीं डॉट है तो फिर हम लोग एक शॉट में, वन शॉट इन बाइनोमियल थ्योरम हम लोग रिवीजन लेंगे तो आपको कंप्लीट सारे कंसेप्ट को पुनः क्लियर करेंगे और बहुत बढ़िया से बनाएंगे। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम। इसके आगे हम लोग एक रिवीजन क्लास लेंगे, शुरू से क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन कौन टॉपिक किए, किस किस तरह के क्वेश्चंस किए, हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद तब हम लोग फिर क्विज और मेगा क्विज करेंगे। ऑल द बेस्ट।